Good morning, students. Good morning. Am I audible, Akanksha? Sir. Rutuj? Yes, sir. Am I audible? Yes. Okay. Please switch on your camera. On your camera, Rutuj. Rutuj, switch on your camera. Yes. Yes, Rutuj. Is the camera on? Yes, sir. You are such a nice student. Very good. Can we see? अरे वाह, lot of changes are there, है ना, in your face. खाया पिया कितना है? सर नहीं खाया कुछ भी। खाया नहीं है? अरे हम तो खा खा के मोटे होते जा रहे हैं भैया। Good morning. Good morning. Who says good morning? अथर हनुमंते, जरा कैमरा ऑन करो। अथर, ऑन योर कैमरा। क्या सर? कैमरा ऑन कैमरा करूं? ऑन करिए। गुड, ओके। So you are walking here and there, है ना? ठीक है, चलिए। परिजन, स्विच ऑन योर कैमरा। परिजन, स्विच ऑन योर कैमरा। Where are you right now, परी? अरे वाह, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी जगह पर है क्या? कहाँ है? गुड 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 गुड, ठीक है ठीक है। चलिए ना, शी माइट बी फेसिंग सम नेटवर्क इशू। चलो ठीक। सो लेट अस कम बैक, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एंड डियर स्टूडेंट्स, we have already given lot of time to chapter 1 in geography. Okay, so now I am going to start with a chapter number 1 in civics portion. Is the textbook visible? Yes, sir. Yes, sir. Is the textbook visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Just a minute. Yes, sir. Okay, fine. So we are having a very simple chapter. ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर रहेगा हमारा ये वाला। ज्यादा कुछ इसमें मगजमारी है नहीं, है ना? सो पहला हमारा क्या है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन डू वी हैव? Ethnic composition of Belgium. कितनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So just a minute, I had a just wait a minute, है ना? I have an urgent. चलिए, so
छोटा सा हमारा स्पीड में काम कंप्लीट हो जाएगा. चैप्टर इज स्मॉल एंड इट इज ऑल्सो अ मार्क गेनिंग चैप्टर. ठीक है. सो पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा बेटा? व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. चलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? I. हु इज आई? नेहा बल्कि. ठीक है. टेल द आंसर. नेहा बल्कि, टेल द आंसर. Bulgaria is a small country in northern land, bordered by northern land. It has a population of around 30,000 square kilometer. Uh, Population of 10 million in an area of 30,000 square kilometer, and yeah, uh, it has two main languages, mainly French and Dutch. Mm, and 59% of the people speak French, while 40% of the people speak Dutch. ओके, जस्ट यू हैव टू रिविजिट द आंसर अगेन, है ना. एक बार फिर से आंसर को अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है. चलिए, तो बड़ा स्पीड में हम करेंगे इसको. इट इज स्मॉल कंट्री. ठीक है. देन एरिया, देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. ये लाइन हमारे काम की नहीं है. ठीक है. सीधा का सीधा कहां पर आ गए? फ्रांस is a small country in, sorry, Belgium is a small country in Europe. ठीक है. आपको पहली लाइन में ये लिखना है along with क्या? borders with France, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. ठीक. नाउ आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों नेबरिंग कंट्री के नेम याद रखना है. कृष्णा, एक इतनी बात आई समझ में? कृष्णा एक सर. ठीक है. Then it has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. So it has a population of little over 1 crore. The ethnic composition of this country is very complex. What? Of the country's total population, 59% lives in Flemish region and they speak Dutch language. Then another 40% lives in Wallonia, speak French. Remaining 1% of the Belgian speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन खत्म. ठीक है. एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. प्रियांशु बल्कि, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Good. Then why there was a problem between the French speaking community and Dutch speaking community? या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, what were the reasons of conflict? What were the reasons of conflict between the two communities in Belgium? What were the reasons of conflict between the two communities in Belgium? Okay, so what was the reason? Reason क्या है? तो reason पहला क्या? The minority French speaking community was relatively rich and powerful. They were minority, संख्या में कम है, but they were relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रिसेंटेड मतलब इसका विरोध कौन करते थे? डच स्पीकिंग कम्युनिटी करते थे. व्हाई? बिकॉज दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेटर. कंट्री में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी उसका फायदा उन्हें लेट मिला. ठीक है. कंट्री में जो एजुकेशन आया और एजुकेशन के जरिए पीपल गॉट जॉब्स एंड सर्विसेज, so they got the benefit late.
ठीक। Now this led to tension between the Dutch speaking and French speaking community. इसके कारण क्या हुआ, बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन मतलब हमेशा विवाद बना रहता था। क्या बना रहता था, विवाद। विवाद। ठीक है बेटा, day before yesterday on 14th, only 46 students were present. On 13th, 47. Then July 10, 49. Then 47, 48. Okay, now on July 7th, 52 students were present. Where is Anudeepa Moon right now? Anudeepa, are you present? Yes, sir. Gungun? Yes, sir. Gungun is present. Manish Vidate? Okay, Manojay? Nitesh Mende? Present, sir. Good. Prerna Pawar? Present, sir. Prajwal Satarkar? Prajwal Satarkar? Rakshit Berad? Okay, ठीक है. I'll see the later. चल. अब these are the reasons for conflict between the two community. Asmita Saha, Sir. is it clear up to this section? Yes, sir. हाँ, खाना खाने इंदौर तो नहीं चली गई? नहीं सर, खाना खा लिया है। अच्छा, ठीक है. So this led to the tension between the Dutch-speaking community and French-speaking community during the 1950s and 1960. So 1950 और 1960 यानी अगले 20 सालों तक, कारुण्य स्विच ऑफ, ऑडियो बंद करो. So ये जो कॉन्फ्लिक्ट था कि माइनॉरिटी इज रिचर, मेजॉरिटी इज कंपैरेटिवली पुअरर. तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसने इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, विरोध करते रहे. ठीक है. सो दैट वाज द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. ठीक है. एक्यूट का मतलब ज्यादा गंभीर था, मामला ज्यादा टसल में था. ठीक है. तो कहां पर था, ब्रुसेल्स में. ठीक है. अब ऐसा क्यों था, बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट दे आर माइनॉरिटी इन द कैपिटल. पूरे देश को देखे जाए, कंट्री की जनसंख्या देखें तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी, बट कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स where most of the economic activities take place, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होती थी. ठीक है. तो वहां पर क्या था, इन दैट पार्ट, ओके, द डच स्पीकिंग पीपल वेर इन माइनॉरिटी. मनोज, इतनी बात आई समझ में? वेरी गुड. चलिए. सो नाउ ये हो गया हमारा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन. व्हाट वर द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम? मनोजय, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ अब आ गए हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा आ गया, श्रीलंका. ठीक है. श्रीलंका में भी हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका.
What would be our first question? Explain the ethnic composition of Sri Lanka. Sri Lanka. Okay. Now, so what answer we should write? Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people. ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा आप पहली लाइन यहां से उठाएंगे। ये एथनिक कंपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। So like other nations in the South African region, South Asian region, Sri Lanka has a diverse population. Okay. Then the major social groups are Sinhala speaker 74% and Tamil speaker 18%. ठीक है, someone has asked a very good question. ठीक है, शायद सूरज यादव था कि सिंहला स्पीकर कितना है? शिवम यादव। और तमिल स्पीकर है 18, है ना। तो ये टोटल हो गया कितना? 8 4 12 का 2 1, 8 + 1 9, 92% सिंहला स्पीकर और तमिल स्पीकर हैं। तो बाकी का 8% कौन है? He has asked a question कि 74, 18, 92 हो रहा है, तो बाकी के 8% कौन है? Now, the remaining 8% were basically the migrants from the different countries of the world. ठीक है, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से जो माइग्रेट होकर के कहां जाकर के बस गए? श्रीलंका में। नाउ दीज पीपल do not recognize, do not call either Sinhali or Tamil as their main language. वो लोग सिंहली या तमिल को अपनी मेन लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करते। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Their number, Yes, sir. their population is comparatively less in the country. ठीक है, so it is not mentioned here. Now among Tamils there are 2 subgroups. Tamils मतलब जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनके बीच में 2 सब ग्रुप हैं। कौन कौन से? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। नाउ तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री मतलब जिनके पूर्वज बाप दादा कहां से? श्रीलंका को ही बिलोंग करते थे। ठीक है, ओनली दे वर लिविंग टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ इंडिया, सो दे started speaking which language? Tamil language. Okay, Tamil. they are the 13%. The rest, that is the remaining 5%, are those whose forefather came India as plantation workers during colonial period, and they are called as Indian Tamil. Okay, now Sir, Sri Lanka. sir. Yes. Sir, what do you mean by plantation worker? Beta, plantation workers means that those type of laborers which are being recruited during the British period to work in different parts of the world in agriculture sector. अंग्रेजों के जमाने में संसार के डिफरेंट पार्ट्स में खेती करने के लिए, टी प्लांटेशन में काम करने के लिए, रबर प्लांटेशन में काम करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों को मजदूर के रूप में एज ए लेबरर संसार के अलग अलग देशों में रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती किया, नौकरी दी। ठीक है, उन लोगों को क्या कहा जाता है? प्लांटेशन वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Plantation workers. Plantation. ठीक है, हमारे हिस्ट्री में एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक, परंतु उस चैप्टर में
इसी प्लांटेशन वर्कर्स को एक और नाम से पुकारा गया. दे आर कॉल्ड एज indentured laborers. What are they called? Indentured laborers. Indentured laborers. ठीक है. Indentured laborers में होता क्या था, जैसे मान लो अभी भी हमारे अंबुजा सीमेंट प्लांट में बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कहलाते हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. है ना. और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जो प्रथा है ये हिंदुस्तान के सारे प्लांट में है. तो जो लोग मानिकगढ़ सीमेंट प्रेमाइसिस में रहते हैं, दे माइट हैव आल्सो हर्ड दिस टर्मिनोलॉजी कि दे आर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. ठीक है. तो होता क्या था उस जमाने में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरे संसार भर में कॉलोनीज थी. तो कुछ कॉलोनीज में they had a tea plantation. In some colonies they grow cotton, sugarcane, indigo, etc. तो वहां पर जो लोकल पॉपुलेशन थी, लोकल पॉपुलेशन के पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज थे, तो दे वर नॉट रेडी टू वर्क एज ए लेबरर. वे लोग मजदूर के रूप में खेतों में काम करना नहीं चाहते थे. यूरोपियंस भी काम करना पसंद नहीं करेंगे, तो मजदूर तो चाहिए. मशीनाइजेशन उस समय था नहीं, तो हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती करके वहां ले गए. तो उनको यहाँ क्या कहा गया है, प्लांटेशन वर्कर्स. नाउ श्रीलंका इज नियरर टू तमिलनाडु, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स, जो मैक्सिमम प्लांटेशन वर्कर्स हैं, वो कहां से ले जाए गए, तमिलनाडु से ले जाए गए. एंड दोस पॉपुलेशन कंटिन्यू टू स्पीक द तमिल लैंग्वेज. सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इंडियन तमिल्स. व्हाट आर दे कॉल्ड, Indian Tamil. Indian Tamil. Indian Tamil. Then most of the Sihila speaking people are Buddhist. सिहली लैंग्वेज बोलने वाले मैक्सिमम लोग कौन थे, बुद्धिस्ट हैं. While most of the Tamils are Hindus or Muslims. ठीक है. मैक्सिमम जो तमिल्स हैं वो क्या हैं, Hindus and Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. लगभग 7% क्या है, Christians. Okay. And they are from Tamil also, as well as from Sinhala speaking group also. Okay. So this is what the ethnic composition of Sri Lanka. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. then in Belgium, ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन है. ठीक है, कि व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस. दोनों कंट्री में यदि इस प्रकार का एथनिक कंपोजिशन डिफर है तो क्या हो सकता है. इन बेल्जियम व्हाट हैपेंस, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल. तो दोनों केस में क्या होगा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या कर सकती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकती है. इफ इट हैपेंस it would push the conflict among communities further. तो यदि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, देन व्हाट हैपेंस, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा. बढ़ेगा. ठीक. तो this could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels.
यदि ऐसा होता तो बेल्जियम में क्या होता, दोनों कम्युनिटीज के बीच झगड़ा होता और उस झगड़े के कारण फाइनली दे वर फोर्स्ड टू डिवाइड, देश का बंटवारा भी हो सकता था। ठीक है। इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड इट कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। श्रीलंका में सिंहली कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजॉरिटी, जो सिंहला कम्युनिटी है, ठीक है, उसके पास मेजॉरिटी और ज्यादा है, एंड इट कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और वो पूरे कंट्री पर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी चला सकते हैं। ठीक, यानी दोनों कंडीशन में क्या है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कुड ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या कर सकती है, माइनॉरिटी डोमिनेट द माइनॉरिटी, डोमिनेट करने की कोशिश कर सकती। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Now let us look at what happened in both these countries, है ना। अब अगला जो सेक्शन है वो क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक, what happens in Sri Lanka, the elected government has adopted which measure, मेजॉरिटेरियन मेजर्स। ठीक है, अब मेजॉरिटेरियन मेजर्स का मतलब क्या है कि द रूल ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटेरियन वे और मेजॉरिटेरियन मेजर्स मीन्स रूल ऑफ majority. So how it happened? Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. जो सिंहला कम्युनिटी के लीडर्स थे, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के दम पर गवर्नमेंट में क्या, डोमिनेंस मतलब एक अधिकार, कंट्रोल बनाने की कोशिश की। ठीक है, so what they did, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन तरीके अपनाने शुरू किए ताकि क्या कर सके, सिंहला कम्युनिटी का कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके। ये अभी किसने अपना माइक ऑन किया था? Who was there? कृष्णा एकरे? Yes, sir. अभी किसने अपना माइक ऑन किया था? Don't know. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. अभी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what were the majoritarian measures adopted in Sri Lanka? क्लियर कट क्वेश्चन होगा, what were the majoritarian measures adopted in Sri Lanka to establish Sinhala dominance? यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. यदि क्वेश्चन मेजॉरिटेरियन मेजर्स का पूछा तो नाउ यहां से हमारा एक्चुअल आंसर शुरू होता है। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job. मतलब गवर्नमेंट ने
इस प्रकार की पॉलिसीज अडॉप्ट करी, गवर्नमेंट ने इस प्रकार की पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिसके जरिए सिंहली कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्हें ही यूनिवर्सिटी पोजीशन मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्हीं को क्या मिलता था, एडमिशन मिलता था, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी उन्हीं लोगों को क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. फिर गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि स्टेट, ना यहाँ स्टेट का मतलब है एंटायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो जो गवर्नमेंट मशीनरी थी वो किस रिलीजन को, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करेंगे और फॉस्टर मतलब आगे बढ़ावा देंगे। ठीक, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, ये क्या हो गए? These are the, all these are the majoritarian measures. क्या कहलाएंगे? Majoritarian measures. Majoritarianism. कोई शिवम, स्टार शिवम कौन है? मैं हूँ सर। हाँ, शिवम। तो शिवम निखाड़े, आफ्टर द क्लास अभी चेंज योर नेम इन टीचमेंट, नो स्टार नथिंग, शिवम का एस कैपिटल और निखाड़े का एन कैपिटल। समझ में आया? ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो, so all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब यहाँ सवाल ये है कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्या होता है? तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन मतलब अलग थलग पड़ जाना, सेपरेट हो जाना। ठीक है, सो ये जो मेजॉरिटेरियन मेजर्स थे इन्होंने क्या किया, इन मेजर्स के कारण श्रीलंकन तमिल्स जो थे दे फील दैट दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ श्रीलंका। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हम अपने ही देश में क्या है, एलियन हैं, अजनबी हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हमें क्या होगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, why did the feeling of alienation emerge among the Sri Lankan Tamils? So Sir, you are not audible. Sir, your voice is not Not audible, sir. Network We are not problem. getting your voice. सर आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is Sir, not not audible. audible. Sir, still your voice is not coming. Sir, not audible. Hmm. Hmm.